Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to this video. So guys, in this video, I'm going to talk about daily study routine for NABARD Grade A 2024 aspirants. So I know सबका अपना अपना study routine होता ही है, but still if you are struggling to find a study routine for yourself, I have come up with this video. And in this video, I'm going to talk about the study routine for all aspirant. Whether you are dedicatedly preparing only for NABARD, okay, if you are a working aspirant or if you are preparing for NABARD along with other examination. So I will be catering to all such aspirants and I will try to give you a genuine daily study routine that you can follow and also you can modify accordingly, right? So let's start this video, but before starting I have a request. If you are new to our channel, please subscribe to our YouTube channel, and if you want to download the informative PDF regarding NABARD and NABARD examination, you can join us on our Telegram channel also. So with that, let's start our video. So guys, see, as I've told you that today I'm going to give you a study plan. No matter whether you are dedicatedly preparing for NABARD only, whether you are a working aspirant or you are preparing for NABARD along with another exams like UPSC or any bank PO examination. So today I have tried to come up with a practical daily study routine. ठीक है, एक practical daily study routine that we will be discussing here, that you can just listen, you can just watch the video, and if you feel like okay, I can include these point in my study routine, you can include. Or what you can do, if you have your own study routine and you are comfortable with that, so no need to do anything extra like ma'am ने बोल दिया तो अब हम ये करेंगे. Don't no need to do anything extra. If you have your study routine, if you are giving that much time to your studies, that's completely fine. Okay, so this is just a idea or just a general study plan that one can follow. Now students, see, before telling you about a study plan or study routine for the day, I have a request that if you can, okay, that's totally up to you, हैव अ डेली स्टडी प्लानर विद यू. ओके, अब जरूरी नहीं है कि एक फैंसी सी बुक खरीद लेनी है स्टडी प्लानर के नाम पे. यू कैन हैव अ कॉपी विद योर सेल्फ, राइट डाउन योर टुडेज गोल एंड जस्ट मार्क these goals at the end of the day whether you have accomplished it or not. Okay, so that's just a tip from my side if you want to follow that. So guys, let's start. So first I'll be telling for the people who are only preparing for NABARD. See guys, अब जो ऐसे एस्पिरेंट है, दे हैव इनफ टाइम, यू हैव 24 hours इन योर हैंड, राइट नाउ. आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब NABARD आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू you don't have any other option ahead of you, you have just NABARD only. So you have enough time, तो आपको टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, राइट. सो for such people I say, if you can give 6 to 7 hour daily, if you can study 6 to 7 hour और 8 hours daily, that will be sufficient. Okay, सबसे पहले तो ये समझ लो कि 6 से 8 घंटे sufficient है. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ NABARD के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है. बिकॉज आज आप 10 से 12 घंटे पढ़ लोगे, another day you will feel frustrated and that's not going to work. Okay, consistency is very important. See students, चाहे वो working aspirant हो, चाहे NABARD के लिए पढ़ रहे हो, कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, consistency and discipline is very important. Okay, that you should bring in yourself. So let's start with the daily plan of the people who are only preparing for NABARD. So what you have to do, you guys have to wake up early in the morning if you can. Again, there is a term and condition applied to this point. If you can, then wake up early. अगर नहीं होता है, then you can extend your study hour in the evening and accordingly you can just extend everything. So students, देखो, आपको जब सुबह उठ के, अगर आप जितने बजे भी उठ रहे हो, ठीक है, सुबह उठ के आपको 30 मिनट का एटलीस्ट टाइम ड्यूरेशन रखना है आप जब उठे और पढ़ाई के बीच में. इट्स नॉट लाइक देख उठते ही आपने किताब पकड़ लेनी है, ऐसा नहीं करना है. गो फ्रेशन अप, टेक अ बाथ, डू एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अपने दिमाग को जगाने के लिए एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो, then be prepared for then you are prepared for the study. Okay, then you can study. Then what you have to do next, write your daily goals. ठीक है, आज आप उठे, आपने अपना टाइम टेबल निकाला कि मुझे क्या पढ़ना है आज के लिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू हैव 4 tasks in your hand, you have to cover 1 chapter of ARD static, you will practice quiz on that same, then next you will read newspaper, then next you will write at least one answer whatever you have read in the newspaper or in the chapter of ARD static, right.
So these are your 4 tasks. You have to write them in points. Then what you have to do, you have to study at least 3 hours. Okay, at least 3 hours in the morning. Okay, and take 5 minutes or 10 minutes break in between. Accordingly, you can take 5 or 10 minutes break in between, but you have to study 3 hours in the morning. Okay, so students, next what you have to do in the evening, if you can take out time in the noon time, so you can read newspaper, you can do some activities, that is not required any much effort. So आप उससे according अपना 2 घंटा निकाल सकते हो, but it's important कि you take a nap. Okay, अगर आप you can take a nap in between in the noon time, take a nap and then be prepared for the evening time, so that you are again freshen up for the evening part. So again evening में you have to give 3 hours. ओके, 3 आवर प्रॉपरली डेडिकेट करना है. अब इस 3 घंटे का मतलब ये नहीं कि इस 3 घंटे के बीच में हम फ़ोन भी चला लेंगे, हम रील्स भी देख लेंगे, हम फिर अपनी स्क्रीन अपनी सीरीज कंप्लीट करेंगे. नो, अपने मैसेजेस देखेंगे. सो यू हैव टू कीप ऑल योर डिवाइसेस असाइड. उस 3 घंटे में आपको सिर्फ पढ़ाई ही पे फोकस करना है, बी इट इन द मॉर्निंग और इवनिंग, राइट. देन आपको आधा घंटा रखना है अपना रिविजन के लिए. वट एवर यू हैव रेड for the day, whatever you have practiced for the day, revise it once at the end. Okay, at the end of the day, and half an hour आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है. क्लियर? So you can divide your whole time accordingly. And then at last, very important, mark your daily target. जो भी आपने daily target सुबह set किए थे, क्या आपने वो accomplish किए हैं for the day or not? If not, then you can, what you can do, you can put star on that, and for the next day you can write it again कि okay, no, I haven't complete this thing yesterday, so I will complete that thing on the next day on priority, and then I'll start my next task. Okay, so इस तरीके से you can accomplish your daily task, you can accomplish your daily target. ठीक है, अगर आपने 2 सब्जेक्ट उठाए, ए आर डी स्टैटिक एंड फॉर एग्जाम्पल आप कॉन्ट्स कर रहे हो, तो सुबह आपने ए आर डी स्टैटिक पढ़ ली, शाम को आपने कॉन्ट्स कर लिया, क्वेश्चंस कर लिया, रिविजन कर लिया, एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर ली, जो भी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा या ए आर डी स्टैटिक का जो चैप्टर पढ़ा उसके उस पर ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर ली, रिवाइज कर लिया, एंड मार्क योर डेली टारगेट एंड देन गो टू स्लीप. ठीक है, ये आपका हो गया एक दिन. फिर नेक्स्ट डे के लिए अगेन यू विल रिपीट दिस साइकिल एंड साइमल्टेनियसली. एंड स्टूडेंट देखो, जब हम बोलते हैं कि 6 से 7 8 घंटे पढ़ना है, तो इट्स नॉट कि आपको सिर्फ पढ़ने पे ही है. आपका जो अदर टाइम है, यू कैन यूटिलाइज इट बाय प्रैक्टिसिंग योर हॉबी. ओके, अगर आपकी कोई हॉबी है उसको भी कर सकते हो. 6 से 8 घंटे अगर आपने दे दिए, रेस्ट आपके पास बहुत टाइम है, राइट. यू विल स्लीप फॉर 8 आवर्स. व्हाट विल यू डू रेस्ट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, अगर आप डेडिकेटली किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दैट मीन्स आप घर में हो, राइट. आप कुछ और एक्टिविटी नहीं कर रहे हो. सो दैट थिंग फॉर लॉन्ग टाइम कैन ब्रिंग बोर्डम. ओके, आप बोर हो सकते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर सकते हो, स्ट्रेस्ड भी फील कर सकते हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू टॉक टू योर फ्रेंड. ठीक है, अपने दोस्तों से बात करो, उनसे डिस्कस करो. अगर आपके साथ कोई प्रिपरेशन कर रहा है, उनसे डिस्कस करो. ठीक है, और वट यू कैन डू, यू कैन परस्यू एनी हॉबी. आपकी कोई हॉबी है, पेंटिंग करना है, लाइक एनीथिंग यू लाइक टू डू, वर्कआउट, डू दैट ऑल्सो. ठीक है, ताकि आपका लाइफ बैलेंस रहे. इट्स नॉट लाइक कि आप पढ़ाई के बारे में ही सोच रहे हो. सो एटलीस्ट दोज पीपल हु आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर वन एग्जाम, बी इट NABARD और एनी अदर एग्जाम, you have to maintain everything in your life. You have to maintain fun also, you have to maintain study also, so that you are not pressurized, you are not stressed. Okay, वो जो पढ़ाई की stress tension है उसको भी कहीं निकालना है. So for that you can pursue anything that you like. Now next we have is working aspirant. Now जो working aspirants हैं, the good थिंक अबाउट दिस वर्किंग एस्पिरेंट ये है कि ये टेंशन फ्री होके पढ़ सकते हैं, बिकॉज दे हैव देयर जॉब विद देम. ओके, जॉब के साथ पढ़ रहे हैं तो इनके टेंशन फ्री होके पढ़ सकते हैं. देखो, पहले वाले जो ग्रुप ऑफ पीपल थे वहाँ पे टेंशन थोड़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज अभी तक कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं, एक ही एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हैं, कोई जॉब भी नहीं है. इनके पास ये तो है कि हाँ, ये टेंशन फ्री होके पढ़ सकते हैं, बट द लिमिटेशन हियर इज टाइम, बिकॉज इनके पास टाइम नहीं होता है, राइट. सो फॉर दोज पीपल व्हाट आई वुड लाइक टू से इज दैट यू हैव टू एटलीस्ट गिव 4 to 5 आवर डेडिकेटली. नॉट 5 भी ज़्यादा हो गया, बट 4 घंटे आपको एटलीस्ट दिन में देने ही हैं फॉर योर प्रेपरेशन. देखो, आप काम कर रहे हो, गुड, बट अगर आपको और लाइफ में आगे बढ़ना है, देन अगेन यू हैव टू पुश योर सेल्फ. तो आपको 4 घंटे निकालने ही होंगे, अपार्ट फ्रॉम योर जॉब, अपार्ट फ्रॉम योर एनी अदर थिंग्स, फैमिली टाइम एंड एनी अदर थिंग. उसके अलावा आपको 4 घंटे निकालने पड़ेंगे डेडिकेटली फॉर द NABARD प्रिपरेशन. ठीक है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन अगैन वेक अप अर्ली इफ यू कैन अगैन. ठीक है, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन पीपल. यूजुअली जो वर्किंग एस्पिरेंट होते हैं वो जो जल्दी उठते हैं, बिकॉज दे हैव टू रश टू द
जॉब। अगर आपको सुबह नहीं हो पाता देन यू कैन अगेन डू दैट इन द नाइट टाइम, एनीथिंग एनी टाइम यू फील कंफर्टेबल विद। ओके, देन अगेन अपना जितना भी डेली का टास्क है 30 मिनट में उसको कंप्लीट करो। नॉट जितने भी टास्क है वर्कआउट और यू वांटेड टू डू एनीथिंग, ओके, कंप्लीट इन 30 मिनट्स, देन राइट डाउन योर टुडेज गोल्स। अगेन सी आपको भी अपने गोल्स लिखने हैं, वेदर इट्स लाइक कि आप दो ही चीज़ कर रहे हो, आप एक न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो और या फिर एक चैप्टर पढ़ रहे हो उसके क्विज कर रहे हो, यही चीज़ आपने चाहे करनी है बट फिर भी आपने उसको लिखना है, ठीक है। बिकॉज आप उस स्टडी प्लानर को जब देखोगे विद टाइम यू विल गेट टू नो कि आपका कितना कंटेंट, कितना पार्ट कंप्लीट हुआ है। एक महीने के बाद पलट के देखोगे कि यार मैंने कितने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, कितना सब्जेक्ट हो गए हैं, कितना बचा है, तो दैट विल हेल्प यू फॉर विद दैट। सो अगेन आपने भी अपने डेली गोल्स लिखने हैं। देन आपने 2 घंटे पढ़ाई करनी है सुबह इफ़ यू कैन, अगर आप सुबह उठ रहे हो। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू योर जॉब, वो 2 घंटे आपको फिर शाम को देने होंगे, राइट, विद प्रॉपर ब्रेक। 5 मिनट का ब्रेक लेना है बीच में एंड 2 घंटे पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट इन इवनिंग, ठीक है, जब आप जॉब से वापस आते हो तो आते ही आप बैठ नहीं जाना है, क्योंकि अगर आते ही आप बैठ जाओगे फिर अगेन यू आर ऑलरेडी टायर्ड विद योर डेली एक्टिविटीज, योर जॉब, देन नहीं, दैट स्टडी विल नॉट बी इफेक्टिव। टेक अ नैप, ओके, एटलीस्ट 15-30 मिनट्स नैप लो, आराम से फ्रेशन अप हो एंड अगेन देन गेट रेडी फॉर योर इवनिंग सेशन। सो इवनिंग में अगर आप सुबह अपने 2 घंटे नहीं दिए तो आपको अब वो 2 घंटे इवनिंग, वो पूरे 4 घंटे इवनिंग में देने होंगे, राइट। इफ यू कैन डू इट, otherwise you have to wake up early as well as you have to manage time accordingly। सुबह उठ के शाम को accordingly you have to manage time। then again अगर आपके पास इवनिंग में अगर आप पूरा 3.5 आवर्स पढ़ रहे हो देन आपको भी हाफ एन आवर रखना ही है फॉर रिविजन एंड इफ पॉसिबल आफ्टर राइटिंग। या व्हाट यू कैन डू रिविजन और यू कैन डू आंसर राइटिंग। अगर आंसर राइटिंग नहीं होती है तो एटलीस्ट डू रिविजन हियर, ओके, एंड देन मार्क योर डेली टारगेट। बट फॉर वर्किंग एस्पिरेंट वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज, जो आपके वीकेंड्स होते हैं, ठीक है, जो आपके वीकेंड्स होते हैं वहां पे आपको अच्छे से ये यूटिलाइज करना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वीक में बहुत कम टाइम है। देखो जो कैंडिडेट्स हैं दे आर डेडिकेटली प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड, उनके पास टाइम है, वो 8 घंटे पढ़ रहे हैं, बट आपको वो कंपनसेट करना है कहीं ना कहीं, राइट। सो व्हाट यू कैन डू, एटलीस्ट एट वीकेंड्स ट्राई टू स्टडी फॉर 8 आवर्स, एक्सटेंड योर टारगेट एंड 8 घंटे एटलीस्ट आपको वीकेंड्स में पढ़ने हैं। यू हैव टू यूटिलाइज योर वीकेंड्स प्रॉपरली। अगेन मैं ये भी नहीं बोलती हूँ कि आपको वीकेंड्स में कहीं जाना नहीं है, सब कुछ सेक्रीफाइस करके रखना है, अपने लिए भी टाइम निकालो वीकेंड्स में, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको नाबार्ड एग्जाम निकालना है तो आपको एटलीस्ट 8 घंटे वीकेंड्स में देने ही देने हैं, ठीक है। सो दैट वाज रिगार्डिंग वर्किंग एस्पिरेंट। नेक्स्ट, द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जाम विद द नाबार्ड एग्जाम। सो उन लोगों के लिए सबसे पहली चीज तो है कि आप पहले उन एग्जाम की प्रिपरेशन करो, आप उन्हीं एग्जाम की प्रिपरेशन करो जिनका सिलेबस कोइंसाइड होता है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर आपका सिलेबस कोइंसाइड होता है तो अगेन यू हैव अ कॉमन एरिया बिटवीन बोथ द एग्जामिनेशन, आप उस कॉमन एरिया को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। रेस्ट आपका जो भी टाइम है वो थोड़ा थोड़ा, अगर एक एक सब्जेक्ट अलग है तो अकॉर्डिंगली जो आपका एग्जाम पहले आ रहा है उसको टारगेट करो, देन जो बाद में है उसके बाद उसको टारगेट करो, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपना सिलेबस देखो जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो। नेक्स्ट, आपको अब अगेन यू हैव टू डिवाइड योर होल डे इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है, राइट। आप क्या कर सकते हो कि जो भी एग्जाम पास में है, ठीक है, आप फर्स्ट हाफ में उसकी प्रिपरेशन करो, ठीक है। फर्स्ट हाफ में जो भी एग्जाम पास में है उसकी प्रिपरेशन करो। सेकेंड हाफ में जो कॉमन सिलेबस है, कॉमन सिलेबस फॉर बोथ द एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन करो। रेस्ट व्हाट यू कैन डू, अगेन आपने दिन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, आपने एक एग्जाम के लिए पहले पढ़ा फर्स्ट हाफ में एंड नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो कॉमन सिलेबस है या फिर जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, लाइक फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर नाबार्ड के लिए एक्स्ट्रा सिलेबस सब्जेक्ट है, आपने फर्स्ट हाफ लाइक फॉर एग्जांपल आपने मेजर पार्ट ऑफ योर डे आपने एक मेन एग्जाम के लिए पढ़ा, बट अगर आप 1-2 घंटे एग्रीकल्चर के लिए निकाल पा रहे हो देन यू कैन अगेन गिव इट टू एग्रीकल्चर, सो दैट आपको अगर ये श्योरिटी चाहिए कि मैं नाबार्ड में भी मिस आउट ना करूं। यूजुअली तो ऐसे प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि जो आपका पहला एग्जाम है, लाइक फॉर एग्जांपल आपका मई में यूपीएससी है तो आप यूपीएससी पे फोकस करो, कॉमन एरिया को ही कवर करो, टेक एआरडी आफ्टर योर फर्स्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। आफ्टर जो आपका पहला एग्जाम है उससे बाद ही एआरडी को पिक करो, या फिर जो और सब्जेक्ट है और फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन उसको पिक करो। नेक्स्ट, या फिर आप क्या कर सकते हो, यू कैन, अगर आपके एग्जाम दोनों एग्जाम की डेट अभी पास नहीं है, बहुत दूर है, तो आप पहले ट्राई टू कवर द
सब्जेक्ट जो दोनों में कॉमन है, पहले उसको ही कवर करो, फिर जब भी जिसका नोटिफिकेशन आएगा, जो भी पार्ट आपका रह जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम, उसको कवर करो एंड देन गो फॉर द अनदर एग्जाम, so that you people can do. And again you have to divide your whole day. सुबह उठ के आपने फर्स्ट हाफ either prepare for one exam, next half prepare for second exam. सेकेंड एग्जाम में भी वो प्रिपेयर करना है जो कॉमन सिलेबस है. इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको कुछ और ही सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है. और अगर आपको पढ़ना है अलग से तो 1-2 घंटे ही आपने उस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है जो अभी पास में नहीं है, जो दूर में है, ठीक है. सो अकॉर्डिंगली यू कैन डू. So guys, that was all for this video. I hope you have got the little bit idea that how can you plan your daily study routine for NABARD Grade A 2024. Talking about our courses, we have 2 courses. One is Gold Pack and another is Silver Pack. In Gold Pack, you will get the content for Phase 1, Phase 2 and interview preparation. In our Silver Pack, we provide the content of Phase 2 and interview preparation. Along with Phase 2, you get ESI, ARD and GA for Phase 1 also, which is integrated again with Phase 2. That is why. Okay. So that was all for this video. I hope you have enjoyed. Thank you so much.